First of all, I think just now there is a mail from Saurav. My ticked option is not correct, although it seems correct to me. Performance management system. Okay. So it's a test for all of us. Okay. Q is a local government organization for a town in country U. Local government organization council for a town in country U. It has a large call center to deal with queries and complaints from local residents and aims to help callers find the information they need. Try to correlate with practicality. It is a large call center to deal with the queries and complaints from local residents and aims to help callers find the information they need. Callers are asked to grade their satisfaction levels from 1 to 10 once they have completed their call, depending on how satisfied they were with their service. Currently, the higher the average grades given by callers across the year, the higher the bonus given to call center staff. The call center experiences a high volume of calls with a number of calls going unanswered. Q has recently decided to change the performance mix for its call center staff. Q, the organization, Q has recently decided to change the performance mix for its call center staff. Staff will now be assessed on 3 separate measures: the number of calls taken by the center in the period, the average speed with which the call is handled, and the total number of complaints about call center service received by Q. The first one is the number of calls taken by the center. The second one is the average speed with which the call is handled. And the third is the total number of complaints about call center service received by Q. This last one I am not getting. The total number of complaints about call center service received by Q. How it is going to help? The total number of complaints about call center service received by Q. The number of calls they handle, the speed with which they solve the query, and the total number of complaints about call center service received by Q. The total number of complaints about call center service received by Q. This last one I am not getting. Let's proceed. Each of these 3 measures will contribute equally to call center staff bonuses. The total number of complaints about call center service received by Q. Maybe they are talking about कि suppose Srishti, you are answering the call, लेकिन आपके आंसर के बाद Q has received a complaint from the person कि Srishti is not doing well. ऐसा the total number of complaints about call center service received by Q. I think. ठीक है कि number of calls we are attending, how speedily we are solving them, and if we are solving them, say speedy or number of calls more, but then we are not handling the issue properly, the customer are not satisfied, then they will be complaining against us. So that complaints. ठीक है. Each of these 3 measures will contribute equally to call center staff bonus. So earlier, the bonus was based on higher average grade given by caller across the year, the higher the bonus given to the call center.
higher the average grades given by the callers across the year, the higher the bonus. And now it is slightly changed. Okay. Based on the above information, which two of the following statements relating to the proposed changes to performance measurement by Q are correct? Now normally this is an area which is related to a public sector organization. And in public sector organization, we generally consider non-financial factors are more important than financial. And in a public sector organization like this, educational institute, hospital, defense, whatever, then we generally consider value for money. Value for money is called economy, efficiency, effectiveness. That is quality resources at the cheapest cost, economy. Efficiency, with the lower resources we need to get the maximum outcome. And effectiveness, whether ultimately the outcome is satisfying our customers or ultimate outcome is good or not. This we have not studied in our classes. We will study, I think, today. But no problem, general common sense to laga hi sakte hain. Now number of calls taken by the center, I think, can be related with economy also, because with the staff we need to take more and more calls. So that is related with economy and efficiency both. Speed with which we handle the call is also efficiency. But the complaints, if we are receiving more and more, then it is related with effectiveness. So they are saying that based on the information, which two of the following relating to the proposed changes to performance measurement by Q are correct? Which two of the following relating to proposed changes to performance measurement by Q are correct? The new performance measurement mix may suggest to staff that the quality of assistance given to callers is no longer a high priority. Can we say this? The new performance measurement mix may suggest to staff that the quality of assistance given to callers is no longer a priority. Can we say? What we were not understanding, the third one, that is the priority. कि अगर आप ठीक से कॉलर का सर्विस नहीं दोगे तो इन दैट केस वो कंप्लेन करेगा तो आपका इंसेंटिव कम हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक सो इट इज नॉट गिवन प्रॉपर इंपॉर्टेंस. दे हैव नॉट सेड दैट आउट ऑफ द थ्री विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट. दे हैव सेड दैट इन द न्यू मेजर ऑल थ्री विल बी देयर. सो आई डोंट थिंक सो ए इज रॉन्ग. द न्यू परफॉर्मेंस मेजरमेंट मिक्स may suggest to staff that the quality of assistance given to callers is no longer high priority. I don't think so this could be the answer, because they are still giving priority to quality of the service. The performance measurement mix should not be changed, as this will disrupt the culture of Q's call center staff. Normally that is a very common thing. If I will say that suppose classes are in the morning, I will say that the classes will be in the evening. I will say that the classes will be in the weekend. Somebody will say that sir अच्छा रहेगा, maybe. But normally we are human beings, we are habituated to something which we are doing for years, for a long time. Because इंसान का फितरत को चेंज करना बहुत मुश्किल है. वो चेंज नहीं होना चाहता. Very difficult to change. I always say this कि नया स्टूडेंट आता है तो don't take print out, study on screen and all that. Yes, that's the human being nature. Not that we are good or bad. हम लोग को वैसे ही अच्छा लगता है जैसे हम लोग किए हैं. For that reason we say culture. कि अगर आपकी फैमिली में जो कल्चर आपको दिया गया है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. So it's actually we say that the performance measurement mix should not be changed, as this will disrupt the culture. ऐसे wrong तो नहीं. But if we want to select the two which are more important, then let's see, keep it in hand. The new performance measurement mix measures may conflict with each other, causing confusion amongst call center staff. I don't think so this is correct. Because मेरे ख्याल से when they have incorporated number of calls, speed and the complaint, so contradictory इतना होना तो नहीं चाहिए. You can say
कि if I will be handling more and more calls, then maybe I will not be able to give them the justice. ऐसे हो सकता है, तो I am not saying 100% wrong, but we are taking that maybe this can be the answer. Then comes the new performance measurement mix is inappropriate as it fails to include financial measures. I will not go with D. I will go with B and C. Because in a not-for-profit oriented organization, financial measures are not, I'm not saying financial measures should not be there. Ki suppose in a call center cost should be 1 lakh, it is 1 lakh 20, it is bad, financial measure. But the more important is non-financial, because automatically financial will be achieved. अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ा देंगे, स्पीड करेंगे, कंप्लेंट नहीं आएगी, तो अपने आप तो फाइनेंशियल अचीव होएगा, खर्चा गिरेगा. सो आई विल गो विथ बी एंड सी इन प्लेस ऑफ डी. व्हाट इज द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल, सौरभ? The answer is something which I have not expected. Answer is A and C. ए एंड सी. वो लोग बी को भी नहीं लिए. A को क्यों ले रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा. श्योर ना, एक बार ठीक से देख लीजिए फिर से पीछे. जी सर. जस्ट चेक वंस मोर कि इज द आंसर इज ए एंड सी. और अगर आंसर का कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है तो वो भी भेज दीजिए. कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली ए सी, तो हम लोग बुद्धि लगाते हैं. हाँ, अगर आंसर ए है, then in that case maybe we are not getting the last word which they said, total number of complaints about call center service received by Q. But लग रहा तो वही है. So where we are not giving importance to the quality. Maybe we can say अगर आंसर A है, earlier it was pure quality only, grades, and now along with the quality it is other measures also. The quality of assistance given to caller is no longer a priority, is no longer an alone priority. Earlier it was an alone priority, now it is related with other two things also. The new performance is inappropriate as is false, वो तो गया. The performance measure mix should not be changed as this will disrupt the caller's call center staff. ठीक है. अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि the first one they are giving the answer, reason being that because earlier there was only one thing, quality, because the grades and all that based on the quality only. Now other than the quality we are focusing on other factors also. So maybe we can say that the quality of assistance is no longer a only high priority. Earlier it was a high priority, but now it is not a high priority. तो मेरे ख्याल से भी आंसर ए और सी सही है यार. टिक कर रहे हैं वो. नहीं, जरूरत नहीं है. हम लोग ये समझ रहे हैं कि वो लोग पहले केवल क्वालिटी को ही देखकर रेम्युनरेशन इंसेंटिव देते थे. अब वो लोग क्वालिटी के अलावा दो चीजें और डाल दी हैं, नंबर ऑफ कॉल्स और स्पीड. क्वालिटी है, लेकिन अब क्वालिटी पहले जैसा नहीं है कि केवल हम क्वालिटी को देखेंगे. तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब वो एक दूसरी बातों के साथ रिलेटेड है. और बी नंबर हम लोग बोले कि जनरली लोग चेंज नहीं करना चाहते. डी नंबर रॉन्ग है, तो इसलिए ए और सी मेरे को भी ज्यादा बेटर लग रहे हैं. आप समझ रहे हैं? समझिए. Why this is the answer? Because I was thinking still they are giving importance to quality. But then if we compare with the past performance measures and now, then earlier it was only quality. And now it is along with the quality other measures also. So the high priority given to quality is no more like that. It is based on other measures also. और ये जो बी नंबर सी नंबर बोल रहे थे, बी नंबर लेना पड़ रहा था बिकॉज ए को इंटरप्रेट गलत किए. अदरवाइज बी नंबर तो नॉर्मली लोग चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई आदमी चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को. और डी रॉन्ग है ही है,
Because in case of public sector, financial measures are not important. I'm not saying we should not have financial measures. We can, we should be. But more than financial, non-financial are more important in public sector. इसलिए मेरे को भी आंसर ए और सी ही लग रहा है. आप जब बोले तो फीलिंग आ गया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. इसको घुमाएंगे कैसे भाई? Add to my drive, print. I think I have to download only, then only it can be changed. No issue, just 1 second. Now, the new measures seem to be downgrade the need to staff to provide help service for calls and stress the importance of speed and the number of calls. This could confuse call center as the new measures for speed may conflict with the third measure number of complaints. Staff may be tempted to deal with abruptly or unhelpfully with the callers simply to reduce calls, which will enable them to achieve 2 out of their 3 bonus targets. कि मान लीजिए स्पीड और जल्दी जल्दी बात कर लेंगे, हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्वालिटी खराब हो जाएगा. नोट दैट द परफॉर्मेंस मेजर, फॉर दैट रीजन आई सेड दैट व्हेन वी आर सेटिंग 3 टारगेट्स, हम लोग को प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा कि व्हाट विल बी द रैंकिंग फॉर 1 टारगेट. व्हेन देयर आर सो मेनी थिंग्स, देन वी नीड टू फाइंड आउट अ वेटेड एवरेज एंड द वेट शुड बी गिवन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी. कि इवन दो द क्वालिटी के साथ 2 चीज और है, बट स्टिल क्वालिटी में बी गिवन हायर वेटेज. अगर वैसा करेंगे तो प्रॉब्लम्स कम होएगा. नोट दैट परफॉर्मेंस मेजरमेंट मिक्स चेंजेस में चेंज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस इज नॉट अ रीजन फॉर अवॉइडिंग मेकिंग दीज चेंजेस. द न्यू कल्चर मे बी बेटर एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन गेट क्लोजर टू द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. अब अगर चेंज जरूरी है तो करना पड़ता है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता है, ये रूल है. In addition, the fact that there are no financial measures in mix does not necessarily make it inappropriate. Because financial अपने आप अचीव हो जाएगा जब ये तीनों अचीव होगा. Q's goals as a council is likely to be about offering an effective service. Finances may be secondary. Actually जो गवर्नमेंट है, कंट्री है, उन लोग बोल रहे हैं ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में, it is written that there are so many calls which are unanswered. So even the government also need to change their perspective. कि अनआंसर्ड कॉल्स तो कोई सर्विस ही नहीं मिल पाता ना. हम लोग अगर किसी से 2 घंटे बात कर रहे हैं, उसको अच्छा सर्विस दिए, तो 2 घंटे में तो 50 कॉल हमने आंसर ही नहीं दिए. तो हम सर्विस अगर एक जन को अच्छा दे भी दिए, 50 आर डिससेटिस्फाइड बिकॉज वी आर नॉट पिकिंग आवर कॉल्स. तो इसलिए गवर्नमेंट शुड ऑल्सो चेंज द वे बाय विच दे आर गिविंग द इंसेंटिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, बाय विच दे आर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पब्लिक सेक्टर सर्विस सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस. गवर्नमेंट को भी चेंज करना चाहिए. गेटिंग एवरीबडी? क्या भाई लोग? Now the question is that even though this was a SEMA question, because in SEMA it is objective type, क्या लगता है ये इजी था क्या? Other than SEMA students, other than Saurav, whether this was easy? I don't think so. Second thing, सौरभ अगर आंसर दे रहे हैं सी और डी या बी और सी, या मैं आंसर दे रहा हूं बी और सी, नंबर क्या मिलेगा? लड्डू, 0. बट अगर ये ACCA के अंदर ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार, आप रिसेंट पेपर देखेंगे, मेरे को याद आ रहा है कि I was doing a paper in the previous batch and in 2021 one of the exam there was a question of 50 marks on a public sector organization focusing on NFPIs that was given on league table and all that, and that was very practical.
उसके अंदर अलग अलग रिपोर्ट बनाने बोला था, 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 मार्क्स. आई डोंट रिमेंबर द टर्म, बट आई रिमेंबर आई डिड दैट केस स्टडी इन द क्लास इन द लास्ट एग्जाम टर्म. जब हम लोग किए थे तो हम लोग किया था. यहां पर जब हम लोग ACCA का एग्जाम दे रहे हैं, देन इट इज नॉट दैट आई नीड टू सेलेक्ट विच वन इज करेक्ट, जो कि ACCA में स्किल लेवल में होता है. इन प्रोफेशनल लेवल यू नीड टू गिव योर व्यूज, यू नीड टू गिव योर सजेशन. तो यहां पर अगर मैं थोड़ा बहुत अलग भी बोल रहा हूं कि मान लीजिए हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग ध्यान नहीं दिए, मार्क्स उस पर भी कटेगा, बिकॉज द अर्लियर ऑब्जेक्टिव वॉज डिफरेंट, नाउ इट इज डिफरेंट. सो उस बात पे ध्यान देना है. बट फिर भी बाई राइटिंग समथिंग वी विल बी एबल टू पास द एग्जाम. बट अगर हम कोई भी बात पे ध्यान नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी वी आर नॉट एबल टू कोरिलेट विथ प्रैक्टिकलिटी, और मे बी हम इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि इट इज लीक टेबल या उस चैप्टर से है, या मे बी वी आर नॉट एबल टू गिव जस्टिफिकेशन फॉर आवर आंसर्स, या लेंथ ऑफ द आंसर शॉर्ट है, तो इंस्टीट्यूट भी बहुत एक्टिव है हर ऑप्शनल पेपर में फेल करने के लिए. नॉट ओनली APM, AFM, एडवांस ऑडिटिंग, एडवांस टैक्सेशन. आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा सकते हो, मेरे को नहीं मालूम अपडेट किया कि नहीं, जो रिजल्ट मंडे को आया है. लेकिन इफ यू गो देयर यू विल फाइंड ऑल द 4 सब्जेक्ट्स द पास परसेंटेज इज 30 to 35. एंड देयर आर मेनी, I will say that, bad luck, or sometime the student feel that many times that I deserve to pass, I have written very well, but still I couldn't pass. मेरा कहां गलती हुआ? वो गलती आपको ऐसे, मान लीजिए आपका जो पेपर है वो मेरे को या आपको तो दिख रहा नहीं है. जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि कल्चर को हम लोग चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप क्लासरूम में रहेंगे तब आप खुद देखेंगे कि आप कहां कहां गलती कर रहे हैं. मे बी यू आर नॉट डूइंग द क्लासेस लाइव, बट फिर भी आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी गलतियां कहां हैं, जिसका प्रूफ आज की क्लास में ही निकलेगा. कि सपोज समबडी गिव एग्जाम अर्लियर, और अगर हम लोग कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग को कितना डीप नॉलेज है उसके बारे में, कि वी आर फॉर द टाइम बिंग स्टडी टॉपिक वाइज, नॉट द कॉमन एरिया लाइक दैट क्वेश्चन. टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली आता है, हाउ मच आउटकम आई कैन गिव. Normally, as I always say in a theory subject, what happens that when we are reading the question and reading the answer, we understand everything. अभी भी जो हुआ कि हम लोग गलती की, हम लोग समझ गए, लेकिन क्या ACCA में वैसे करने से हो जाएगा? नहीं होएगा. It is not possible in ACCA to pass the exam like that. Or if you can say that, suppose you were practicing mock papers or past term questions, exam kit, आप जनरली ऐसा फील करोगे, नॉट एवरीबडी, कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद मान लीजिए आपने आंसर करना चालू किया, विच हैपेंस अर्लियर विथ मी ऑल्सो व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट. सिंस थ्योरी है, मे बी ऑडिट है, लॉ है, कोई भी सब्जेक्ट है विच इज थ्योरी सब्जेक्ट, तो हम लोग का आदत क्या है कि हम क्वेश्चंस पढ़े, हम चाहते हैं भी राइट, नीड टू राइट आंसर्स, बट थोड़ा सा लिख के हम रुक जाते हैं, वी स्टॉप, देन वी सी द आंसर, एंड व्हेन वी आर सीइंग द आंसर, मे बी वी आर नॉट कंप्लीटिंग इट, और मे बी वी आर कंप्लीटिंग आफ्टर लुकिंग एट द आंसर. तो जब हम लोग आंसर देख चुके तब तो लिखकर कोई मतलब नहीं है. व्हेन यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ, यू नीड टू बी 100% प्योर. मेरे को ये आंसर देखना है, बाद में देखना जरूरी है. After writing your answer, you need to see the model answers for improvement, for finding out your mistakes. अगर सही भी है तो भी, मान लीजिए if we would have said the answer A and C, फिर भी एक बार आंसर में रीड करना जरूरी है कि क्या बोल रहा है. What are the things which I am missing, which I need to improve. ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस करना है. और जब एग्जाम आता है 10 days, 15 days before the exam, then 3 घंटा मॉक टेस्ट. मतलब क्या होता है? You are in exam hall sitting, maybe remote based, sitting in home, maybe exam center based. आप जब एग्जाम देते हो आपको कुछ करने नहीं मिलता है, कहीं देखने कुछ नहीं, आप पूरा फोकस्ड होकर, और 3 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिलता. आप मॉक टेस्ट जब करते हो वैसे ही सोचो. डू द मॉक टेस्ट ऑन द इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म.
क्योंकि आपको वैसा ही फील मिलेगा। एंड सी दैट कि ये एग्जाम हो रहा है, फेल होंगे कोई बात नहीं है, घर पे ही फेल होंगे ना, देखते हैं क्या नंबर आता है। उसको एक चैलेंज लीजिए कि व्हेन यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट, यू हैव डन द रिवीजन, नाउ स्टार्ट डूइंग द मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 2 or 3 मॉक पेपर्स exactly in 3 hours on the institute practice platform, thinking that you are giving exam, मोबाइल फोन बंद, आप एग्जाम ही दे रहे हो वैसा सोचकर। उसके बाद करने के बाद उसका मॉडल आंसर एनालिसिस करेंगे, वो भी 3-4 घंटा होएगा, 2 मिनट में नहीं। कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है 50 नंबर का, देयर आर 4-5 पार्ट्स, फॉर फर्स्ट पार्ट ए 8 मार्क क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा है, मैं कहां गलती कर रहा हूं, उनका मार्किंग गाइडलाइंस क्या है, मेरे को उस पर फोकस करना है कि एग्जामिनर कहां नंबर दे रहा है, मेरे से कहां चूक हो रही है, मेरे को उसके ऊपर वर्क करना है। आई से ऑलवेज देयर इज ए स्टूडेंट of 63 years of age, Mr. Basant, working in IBM for 20 years plus. वो सब एग्जाम एक बार में क्लियर किए, एक एग्जाम बीच में गड़बड़ हुआ था, घर से एग्जाम दिए, कुछ बंद हो गया, प्रॉब्लम हो गया, व्हाटएवर, बट वो सारे एग्जाम एक बार में क्लियर किए। नाउ he says that sir I will say 2-3 things for passing. He is saying if you want I can give his number to you, anybody. उनका बोलना है कि सर केवल मॉक पेपर करने से नहीं होएगा सर, उनका मार्किंग गाइडलाइंस, वो लोग क्या बोल रहे हैं, कहां पर इंप्रूव करने बोल रहे हैं, क्या चीज पे नंबर वो लोग दे रहे हैं, वो पढ़ना बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है कि हम मॉक टेस्ट देने के बाद उनका जो आंसर्स है, उनका जो मार्किंग गाइडलाइंस है, उस पर अच्छे से रिसर्च करें। बोला पहले मैं ये नहीं कर रहा था, जब मैंने ये किया तो मेरा नंबर 60+, ही स्कोर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स 60+। दूसरा, सर आप जो बोलते हैं कि चीजों को मगअप नहीं करना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज व्हेन इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, आई कैनॉट रिमेंबर मगअप अ सिंगल 2-line sentence from the entire material, even though I have taught APM, I think this is the 6th or 7th time I am teaching. तो आप सोचिए कितना बार पढ़ ली, लेकिन मेरे को एक लाइन भी, एक सेंटेंस भी नहीं याद है, क्योंकि मैंने कभी चेष्टा ही नहीं की। बिकॉज मेरे को पता है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा या मैं लिखूंगा, मैं वो सेंटेंस नहीं लिख सकता। आई कांट राइट द सेम सेंटेंस, सो व्हाई आई विल पोक माई ब्रेन into memorizing something which is not possible, because so many theoretical aspects are there. स्पेसिफिकली AFM में उनका बोलना है कि सर मैं एग्जाम में पास हुआ, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं पास हो गया, लेकिन आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू टॉट। बहुत सारी चीजें हम लोग कंपनी में करते हैं जो मेरे को समझ में नहीं आती थी, मैं कर नहीं पाता था, अब मैं वो अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूं। नाउ ऑलरेडी ऑफ एज ऑफ 63, उनका लड़का भी चार्टेड अकाउंटेंट है, तो व्हेन ही वाज स्टडिंग ही वाज टेकिंग हेल्प फ्रॉम हिज सन ऑल्सो, कि भाई वो भी कुछ बताएगा। तो वो उनका लड़का बोलता है कि आपका ACCA तो बहुत फैंटास्टिक है पापा। वो खुद बोलते हैं ऐसे, कितना अच्छे तरीके से ये लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कितना लॉजिकल वे में ये लोग सिखा रहे हैं। तो नॉर्मली एक है कॉन्सेप्ट, दूसरा है मगिंग अप पे ध्यान नहीं देना है, तीसरा है हर टॉपिक में क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना मतलब पीछे से आंसर उसके बाद देखना है, अपने को इंप्रूव करना है। लास्ट पार्ट है मॉक पेपर्स, पूरा का पूरा 3 घंटे में एग्जाम टाइप सॉल्व करना है। बिकॉज इंस्टीट्यूट ने इतना बढ़िया प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बना कर दिया है, उसको हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद उसके बेसिस पे एनालिसिस प्रॉपरली करना है। तो आई से दैट इन लास्ट 15-20 days, सपोज आई एम डूइंग अ मॉक पेपर टुडे फॉर 3 hours, उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं 3-4 घंटे उस पर एनालिसिस करूंगा, उसके बाद 2 दिन मैं फिर से रिवीजन करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ माई परफॉर्मेंस इन द मॉक टेस्ट, आई विल बी डूइंग द रिवीजन वॉट एवर माई वीक एरियाज। देन अगेन 3-4 दिन बाद फिर से मैं दूसरा मॉक पेपर लूंगा, फिर से 3 घंटे एग्जाम दूंगा, फिर से मॉडल आंसर्स को रिलेट करूंगा नेक्स्ट डे, फिर से मेरे को दिखेगा इंप्रूवमेंट तो है, अभी भी प्रॉब्लम्स है, और उसको इंप्रूव करेंगे, फिर 2-3 दिन पढ़ेंगे, फिर तीसरा मॉक टेस्ट देंगे। गारंटी है पास होते हैं कि नहीं, गारंटी है। बिकॉज देयर इज नॉट ए सिंगल स्टूडेंट इन प्रोफेशनल लेवल हु इज नॉट सीरियस, कोई ऐसा नहीं है, एवरी स्टूडेंट इज सीरियस। बट देन सपोज स्टिल इफ वी आर रिसीविंग फेलियर,
मान लीजिए 44 आया, 49 आया, 41 आया, 40 से 50 के बीच में आया, आप खराब नहीं हो, नोबडी कैन से दैट यू आर बैड, बट देन कुछ तो गड़बड़ है ना जिसको आप नहीं कर रहे, जो प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे भी थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स and I am giving you 4 marks, somebody will give you 5 marks, you can't question me that sir why you are giving 4. थोड़ा तो इधर उधर होगा, it is not 2 plus 2 4. 5 to 7% here and there possibility arises because if you give marking to yourself, आप सुबह और शाम अपने आंसर पे अलग नंबर दोगे अपने आप को. So you can't challenge the examiner that he has given me 48, he could have given me 50. He could. बैड लक. जो 50 नंबर लाया, जो 48 लाया, मेरे हिसाब से दोनों पास है, बट एक जो 48 लाया उसको फिर से एग्जाम तो देना पड़ेगा ना. यू कांट डू दैट एनीथिंग, एग्जाम तो फिर से होगा. बेचारा 48 2 नंबर कम हो गया, पूरा मेहनत फिर से करना है, तो काहे को हम 50 पे रहेंगे? वाई वी आर हॉवरिंग अराउंड 50? वाई वी आर नॉट टचिंग द फिनिशिंग लाइन विथ कॉन्फिडेंस? Why we are not getting 60 plus? क्योंकि आपका अगर 40 से 50 के बीच में आया, आपको मन में पता है कि मेरा 50-55 करीब आ सकता था, लेकिन आपको मन में ऐसा क्यों नहीं लगता है कि मेरा 60 प्लस 70 प्लस आता? और अगर एक बार एग्जाम दे दिए तो दूसरा बार तो 90 आना चाहिए ना. जब जो, लेकिन नॉर्मली होता क्या है? जस्ट इनवर्स. वी गेव द एग्जाम, वी कुडंट क्लियर, we give again exam, we don't clear. Not in ACCA, any course you talk. CA, there are so many students here CA CM में. आप ध्यान दीजिए, जब आप मेरे से कभी CA पढ़े या किसी और से पढ़े, एक बार स्टूडेंट फेल हुआ, वो दोबारा फिर फेल होता है. There is a 90-95% probability of failing again. Whereas the same thing we are studying twice. फिर से पढ़ रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? This happens mainly because of demotivation, and this happens, this is the prime reason. And the second reason, we are repeating our mistakes again. When we got 40, 45, 50, 2 नंबर कम आया, हमें उसी समय ध्यान देना चाहिए मेरे में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज को मेरे को इंप्रूव करना है, जिससे कि मैं 50 के पास नहीं रहूं, मैं आगे निकल जाऊं. तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप 2 बार एग्जाम दे चुके और आप तीसरी बार दोगे, आई एम सेइंग फैक्ट, तो आपका कोई 50 आ जाएगा. और आ भी जाए 50, मेरे हिसाब से तो फेल ही है यार, कि 2 बार एग्जाम दिए 40 to 50, तीसरी बार फिर से 50-51, तो अभी भी तो गड़बड़ है. आप बोलेंगे उसको ठीक कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्लास में देखिए ना यार, मैं बता तो रहा हूं कैसे ठीक करना है. कि अभी ये जो क्वेश्चन है, गलती मैंने भी तो किया, मैं कहां बोल रहा हूं गलती नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से आपने फील लिया होगा कि क्वेश्चन को मैं कैसे पढ़ रहा हूं, एक एक लाइन पे कैसे ध्यान दे रहा हूं, क्या कंसंट्रेशन है क्वेश्चन रीड करने में. गलत सही की बात नहीं है, पूरा दुनिया को भूलकर क्वेश्चन रीड कर रहे हैं. व्हाट फैक्ट दे आर सेइंग, व्हाट दे वांट टू से, इस पैराग्राफ में ये आंसर क्यों है, ये क्यों नहीं है, उतना डिटेल में सोचना होगा. इसका मैंने जस्ट को रिलेट किया, इट इज नॉन फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, पब्लिक सेक्टर है, उतना तो सबको याद रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा तो आपको टेक्निकल और याद रखना नहीं है. मे बी यू आर गिविंग ACCA एग्जाम, मे बी सीमा एग्जाम. प्रैक्टिस तो क्वेश्चंस को करना होगा ना, इन द राइट डायरेक्शन. यू विल फील इनसाइड योरसेल्फ कि मेरे में डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं होएगी, मैं पास हो जाऊंगा. बिकॉज आपको अंदर से कॉन्फिडेंस, खुद से आवाज आनी पड़ेगी, मेरे को कोई फेल नहीं, बोलना नहीं है क्लास में किसी को, मेरे को कोई फेल नहीं कर सकता, ऐसा अंदर से आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. दैट विल गिव यू 95% probability of passing the exam. 5% is still in God hand. Maybe on the day of exam, that day is not your day. बिकॉज अगर कोई भी अच्छा बैट्समैन है, कोई अच्छा प्लेयर है, हर दिन हर मैच में अच्छा थोड़ी ना खेलता है, लेकिन जब वो खराब खेलता है तो हम लोग बहुत बोलते हैं, क्या करता है, व्हाट ही इज डूइंग. अदर्स विल से लाइक दिस ओनली, बट नॉट योर डे विल बी द बेस्ट डे एवरी डे. मैं अगर हर बार क्लास लेता हूं, हर दिन अच्छी क्लास थोड़ी ना होती है, कभी कभी खुशी नहीं होता,
मन अच्छा नहीं है बिकॉज ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर नहीं है हम लोग कि वी विल बी डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन विद द सेम पैशन विद द सेम एक्यूरेसी. वी आर ह्यूमन बींग्स. बट हम ऐसा लेवल तो पहुंच जाए कि मेरा कोई भी माइंड हो एग्जाम में, आई विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, बिकॉज दैट मीन्स आई एम इन द रेंज ऑफ 60 to 70 मार्क्स. तो 50 का टेंशन मेरे को एग्जाम में नहीं होने वाला है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ रीजन फॉर फेलियर इन थ्योरी सब्जेक्ट्स. और जो स्टूडेंट लोग एपीएम में फेल होते हैं वो जनरली एसबीएल में फेल होते हैं, जनरली, बिकॉज एपीएम का बड़ा भाई है एसबीएल. एपीएम का बड़ा भाई, इफ यू से E3 P3, बड़ा भाई इज स्ट्रेटेजिक केस स्टडी इन सीमा. तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लिखने का फीलिंग नहीं है, तो एसबीएल में तो बहुत लिखना है, तो स्टूडेंट फेल हो जाता है. मान लीजिए एसबीएल में 50-51 आया, समझना है वो बाई चांस भगवान देख लिया, बट 60 प्लस तो नहीं आया ना, 70 प्लस तो नहीं आया, इसका मतलब गड़बड़ी तो वहां भी है. somebody scored in say SBL 49 और कोई स्कोर किया 50, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है. बिग डिफरेंस इज पास एंड फेल, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, बिकॉज 49-50 डजंट मेक अ डिफरेंस. बट अगर मेरा 50 करीब आ रहा है, इसका मतलब मेरा थ्योरी एरिया में प्रॉब्लम है, मेरे को उसको ठीक करना होएगा. और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट बार हम एग्जाम देंगे तो पास हो जाएंगे. वो आपको हर दिन दिखना चाहिए, हर दिन आप में इंप्रूवमेंट फील होना चाहिए, बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट एग्जाम. सीमा E3 P3 डिफिकल्ट एग्जाम, इवन डिफिकल्ट देन ACCA, बिकॉज फुल मार्क पास और फेल. माथा खराब हो जाता है. कोई पास हो रहा है एक बार में, वो अलग बात है, वो अच्छे से पढ़ रहा है, वो पूरा का पूरा ध्यान दे रहा है कि कहां गड़बड़ी है. वन स्टूडेंट स्कोर्ड इन APM 49, बेचारा 49. वो बेचारा बोल रहा है कि सर इस बार तो मेरा सब कुछ ठीक था. ही फेल्ड 2 times अर्लियर, 3rd time फेल इन APM. पहले कोई बार 40 के कम आया, दूसरा बार 44-45 लाए कुछ, तीसरा बार 49, तीसरा बार गड़बड़ हो गया. आई कैन फील द पेन, बिकॉज अगर मैं उसकी जगह हूं और मैं तीसरा बार फेल हुआ और पढ़ने के बाद, तो माइंड तो खराब हो जाएगा. माई कॉन्फिडेंस विल सैटर. क्या हो रहा है? या तो भगवान को कोसेंगे, या अपने बारे में सोचेंगे, या मेरे को कोसेंगे भाई कि सर ठीक से नहीं पढ़ाते. ऑब्वियस लॉजिकल कि भाई मैं ठीक से नहीं पढ़ा रहा, आप सोचेंगे. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये आता है कि सब बात सोचकर अल्टीमेटली आगे क्या है? इसी से ये करना है कि छोड़ देना है? कि सीए जैसे ही पार्ट क्वालिफाइड, तो वो तो नहीं करना है. तो ध्यान देना है, मेरा 49, 44 ये सब क्यों आ रहा है भाई? वाई आई एम हॉवरिंग अराउंड 40s. और इंस्टीट्यूट का चेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं. ये जरूर हो सकता है बेचारा का 49 से 50 आ जाता, पास हो जाता, विच इज 5% बैड लक. लेकिन उनका 49 मतलब हिज एक्सपेक्टेशन वाज आल्सो 50-55 ओनली. और हम लोग जब भी कुछ करते हैं, हम लोग अपने लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं. नंबर आ जाएगा. मॉर्निंग, डे, नाइट, एवरी टाइम वी थिंक अबाउट व्हाट वी हैव डन, और उसका रिजल्ट कैसा आएगा, हम ऐसा ही सोचते हैं. और हम लोग हर बार अपने आप को पास कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं ना, अपने बारे में या किसी और जो अपने से कनेक्टेड है, हम लोग उसके बारे में हरदम अच्छा ही सोचते हैं. मेरा लड़का है, जितना भी बदमाशी करे यार इसलिए किया होगा. अगर दूसरे का बच्चा है, चाहे कोई भी रीजन हो, आई विल से बैड. ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का नेचर है. तो आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मेरा पास होना चाहिए, मेरे को 50 लाना चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए कि 50, 49, 40, 45 सब एक ही बात है. कुछ बैड लक हुआ ऑब्वियसली, बट हम लोग भी प्रॉपर एफर्ट्स नहीं दे पा रहे. जब आप उस बात को ध्यान देंगे तो आपको देखिएगा. जब मैं क्लास में टेस्ट लेता हूं तो आपको सामने दिखता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरा मार्क्स आ रहा है, किस तरह से मैं लिख रहा हूं. जब मैं क्लास में टेस्ट लेता हूं, आधे जन तो देते ही नहीं टेस्ट, कि सर मेरा बिजी है, ऑफिस में काम है, ये है. सर सब बात चलेगा, लेकिन मैं इस केस में आपको कैसे पास कराऊं? और जब मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, बिकॉज आई कैन टीच 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम, अदर सब्जेक्ट्स आई कैन नॉट टीच. अब इन दैट केस आप अपने आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो फोकस नहीं लाते, ध्यान नहीं देते.
आपको खुद को पता है, मेरे को नहीं बोलना है, किसी को नहीं बोलना है, बिकॉज आई नो दैट व्हाट इज लूप होल्स इन मी, एनीबडी शुड नॉट से। मेरे को खुद में पता है मेरे में प्रॉब्लम क्या है, तो उन पे वर्क करिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू पास। आप हाईएस्ट लाएंगे यार, 70 नंबर लाएंगे। और सोचना भी चाहिए कि अगर मैं एग्जाम दिया हूं, बिकॉज देयर आर समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन somebody failed in exam, next time score rank. We have auditing, student failed in exam, next time score auditing world rank 3rd. उसको बोलते हैं जोश, कि एक बार ऑडिटिंग में फेल हो गए, दूसरी बार एग्जाम दिए। आई एम नॉट टॉकिंग एडवांस ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्किल लेवल, जो स्टूडेंट ने रैंक लाया वो पहले फेल हुआ था ऑडिटिंग में। वैसा जोश चाहिए ना, कि वर्क ऑन मिस्टेक्स। ध्यान दीजिए, ऑडिटिंग है, एपीएम है, एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, ये सब थ्योरी सब्जेक्ट्स है। एसबीएल आप पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा अपने वीक एरियाज पे, अपना लेवल। इफ यू आर ऑलरेडी गुड, टेक यू नेक्स्ट लेवल, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, और आपको खुद ही दिखेगा। ये नहीं कि कोई और देखेगा, आपको खुद दिखेगा कि मेरे में गलतियां कहां हैं। केवल आप अगर ये सोचेंगे कि मैंने एग्जाम किट सॉल्व किया, मॉक पेपर्स किया, तो फिर फेल क्यों हुआ? वी नीड टू अंडरस्टैंड ना व्हाई वी कुडंट पास व्हेन वी डिड एवरीथिंग। तो कहीं तो गड़बड़ी है, कुछ तो है जो मैं नहीं कर रहा हूं ना, जिसको मेरे को ध्यान देना है। वो कैसे दिखेगा? आप एक क्वेश्चन उठाइए, जब आप 2 बार एग्जाम दिए, 1 बार ही दिए हैं, आप कोई क्वेश्चन हो, बिकॉज थोड़ा बहुत तो याद होगा, आप उसका आंसर लिखिए विदाउट लुकिंग एट द मॉडल आंसर। You will find that कि your performance is coming between 40 to 50% only. तो वही रहेगा ना एग्जाम में आंसर। That's the result which we are getting, which we are already have achieved the level. तो वो लेवल हम पार नहीं कर पा रहे ना, उसको अच्छे से पार करना होगा। That's my advice, my suggestion, my experience, my understanding when the students are giving AFM, APM, advanced auditing and assurance and advanced taxation. There is a student, passed all 12 subjects, just completed graduation this year, first attempt. He has selected in place of auditing, in place of APM, advanced auditing and assurance. बेचारा पिछले बार, last time 44 or 45, this time advanced auditing and assurance 41. बेचारा का क्या हाल हो रहा होगा कि पूरा का पूरा एसीसीए कंप्लीट कर लिए एक बार में, अभी लास्ट में आके ये तो सांप सीढ़ी हो गया ना, स्नेक एंड लैडर, 95 से सीजिया 5। यार बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन वी नीड टू वर्क कि मेरा 40s में क्यों आ रहा है। आप सोचेंगे एपीएम, आप पता लगा लो यार, एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एडवांस टैक्सेशन, एएफएम, पता लगा लो बढ़िया से। देयर इज ए स्टूडेंट टेकिंग क्लासेस विथ अस, शी वाज सपोज्ड टू गिव एग्जाम फॉर एएफएम लास्ट टर्म, डिडंट गिव बिकॉज some family function and all that. वो बोल रही है सर मैंने पता लगाया, मेरे तो जितने फ्रेंड्स वगैरह है सब एएफएम में फेल हो गए हैं सर, सर बहुत गड़बड़ है सर, सर कैसे पास होंगे वगैरह। सो देयर नाउ जनक्रीत, यू आर ऑलरेडी देयर। आपकी सिस्टर उमा पहले एएफएम का एग्जाम दी थी, उनका 40 से 50 के बीच में आया था, अभी उन्होंने एग्जाम दिया, उनका 60 के पार आया है। आप उनसे फील करिए, पूछिए कि पहले क्या गड़बड़ी थी और अभी क्या गड़बड़ी है। 60 के ऊपर आया ना यार, कि अर्लियर सी स्कोर्ड इन 40 to 50 एएफएम एंड नाउ सी स्कोर्ड 60+। आप उनसे पूछिए। तो मैंने वो जो दूसरी गर्ल है जो एग्जाम नहीं दी, मैंने बोला आप उमा से बात करिए। उमा बोली कि सर मेरे को इससे क्यों बात करना है। मैं बोला मत करो यार, सी वॉन्ट टू टेक सम हेल्प कि हाउ यू स्कोर्ड 61। मेरे से तो कोई सुनेगा नहीं, मेरी बात तो मानेगा नहीं। तो जब उमा ने उनसे बात किया तो बोली सर मजा आया, बहुत अच्छा लगा, सी इज वेरी गुड, वेरी वेल सर, हेल्पिंग मी टू कनेक्टिंग विथ हर। अरे यार, इसीलिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता नहीं। कोई भी कुछ बोलेगा दूसरा मेरे को चिल्लाने लग जाएगा, नहीं बनाना है यार। ऐसे भी गवर्नमेंट बहुत ऐसे कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में आपने क्या दिया नहीं दिया। आई मीन टू से दैट a successful person will be speaking you about success, a failure will be speaking you about the failures. You need to learn from the mistakes of the failure, but don't give so much importance to the failures, because failures आपको फेल होने का तरीका बता सकता है, पास होने का तरीका नहीं। जो पास हुआ है, जो सक्सेसफुल है,
वो आपको सक्सेस होने का तरीका बताएगा। और जब आप सक्सेस होने का तरीका सुनोगे तो आप में पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। मैं अगर यही बात करते रहूं कि हम लोग फेल क्यों हुए, क्या हुआ, तो हम फिर से फेल हो जाएंगे। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से चीजों को आगे ले जाना होगा। देन ओनली वी कैन से दैट वी विल पास द एग्जाम एंड वी विल बी गेटिंग फ्लाइंग कलर्स आउटकम। आउटकम अच्छा मिलेगा। तो जनकृत, आप अपनी सिस्टर से बात करिए, घर में ही है यार, कि ऐसा क्या था जो पिछली बार नहीं किए और इस बार किए, ऐसा क्या था, वो बताएगी। जनकृत, आपको भी इस बार 70 लाना है यार। प्रैक्टिस तो पहले भी की थी हो यार। व्हेन आई वाज टेकिंग मार्च बैच, मार्च 2022, AFM की क्लासेस ले रहा था, तो उनका जो डाउट था वो अच्छा नहीं था। जब मैंने मॉक टेस्ट लिया, उनका परफॉर्मेंस देखा, उनको भी समझ में आ रहा था। एग्जाम दिए, कुछ ठीक से नहीं हुआ, 47 48 आया होगा, मेरे को याद नहीं है, शी सेड। तो फिर वो दुखी हो गई कि सर क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, मेरा क्यों नहीं हुआ। मैंने समझाया, तो अभी वो अच्छे से एग्जाम दी, क्लियर हो गया। अब इस बार तो अभी लाइव क्लास नहीं चल रहा था, फिर भी फोकस तो किए ना। गलतियों को ढूंढिए, समझिए कहां गड़बड़ है। And everybody, again and again I am saying, all optional papers of ACCA are difficult to pass. और आप ये मत सोचिए ये तो सौरभ का सीमा का क्वेश्चन था। अरे यार, आपके भी ये सेम क्वेश्चन आया है। और सौरभ को ये नहीं सोचना है ये तो ACCA है, सीमा माने सीमा का तो अलग है। अरे भाई, सब एक ही है, सब एक ही है। अगर अलग होता तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा यार। अगर CPA, सीमा, CMA, ACCA सब अलग है, सो हाउ कैन आई टीच? इट्स इम्पॉसिबल ना। ऑब्वियसली थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर अलग है, कुछ एरिया अलग है, कुछ क्वेश्चन पैटर्न अलग है, सब एक ही है। अपने को चीजों को समझना है, बिकॉज जिंदगी में तो समझना ही काम आने वाला है। कोई एग्जाम का मार्क्स या एज सच नो इंपॉर्टेंस। देयर आर मेनी हु पास द एग्जाम्स 3-4 टाइम्स में, बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ बिकॉज दे आर वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। समबडी सेज दैट फेल होकर बहुत प्रैक्टिकल हो गया, दैट इज इलॉजिकल थिंग। वो पहले से ही प्रैक्टिकल था। देयर आर मेनी हु स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, बट देन स्टिल दे आर नॉट एबल टू डू वेल बिकॉज प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, नाउ किसी को कुछ बोलना है भाई? Then we will proceed further. Why I am saying this? Because when the result comes, then at that time, ऐसा फीलिंग आने लगता है, कोई फेल हुआ, कोई पास हुआ, किसी का बैड लक हुआ, किसी का कुछ हुआ, किसका क्या गड़बड़ हो, सबके बारे में तो पता है ना यार। हर एक जन के बारे में सोचना पड़ता है। तो वैसे ही मैं तो ये जब पढ़ रहा था, when I was reading the question, Saurabh, then I was thinking about myself. My family members, my wife and all that are saying, तुम पागल हो जाएगा, क्योंकि in a day you were talking continuously on phone and all that. कि जब से रिजल्ट आया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आई थिंक आउट ऑफ 24 आवर आई एम टॉकिंग एटलीस्ट, टॉकिंग बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 11 to 12 hours. Those who passed, they are celebrating their success. Those who couldn't pass, they are sharing their sorrow, their sadness, their problems. Those who have not studied with me, they are asking for help. There are many who are new queries. सबसे बात तो करना होगा। कोई को कभी कभी मान लीजिए, मैंने कल रात को एक जन को बोला कि ही इज इंटरेस्टेड इन IFRS, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ही इज इंटरेस्टेड इन IFRS, 4 साल से IFRS के बारे में बात कर रहे हैं। कोई इश्यू होगा, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अभी 3-4 दिन से फिर तो उन्होंने एक बार बोला सर IFRS का फिर से बता दीजिए। मैंने फिर से वॉइस मैसेज दिया, मैंने फिर से पेमेंट का डिटेल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी टीम को फिर फोन लगा लिया, तो मैंने फिर डिटेल दिया। फिर उसके बाद वो कल फिर चालू हो गए, सर फीस वगैरह क्या है, कैसे है, कैसे पेमेंट करना है क्या, फिर मैंने बता दिया। तो मैंने बोला यार कैसे गजनी बनना है क्या यार। आपने ये बात अगर कर रहे हैं कि सर पेमेंट कितना है, खर्चा कितना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या होता है, तो मैंने वीडियो भी दिया वो भी नहीं देखते हो, व्हाट्सअप दिया वो भी नहीं सुनते हो, तो उसको गुस्सा आ गया। सो ही हैज गिवन अ बैड मैसेज कि सर इफ यू डोंट हैव पेशेंस हाउ यू विल टीच सर एंड ऑल दैट। मैंने बोला थैंक यू सर। फिर बोलता है सर प्लीज बात करना है। मैंने बोला करो कॉल यार। तो मैं बोला यार समझते ही नहीं हो,
कि मैं बोल रहा हूं, जब एक ही बात अपने बोल रहे हैं उसको 4 बार, मैं रिसेंटली 3 बार बोल दिया, अब फिर उसको बार बार थोड़ी ना बोलते रहेंगे। तो कभी कभी मैं अगर ये बोल रहा हूं और मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, मैंने बोला वही बात को फिर कितना बार बोलूं यार, तब ही गिव बैड मैसेज। ऐसा कभी कभी होता है, समझ में नहीं आता कि मेरी गड़बड़ी है कि उसकी, हो सकता है मेरी है, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी हाउ मेनी टाइम्स आई विल से द सेम थिंग। अब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है और वो क्वेश्चन ही लॉजिकल है, कभी कभी हो सकता है गुस्सा आ जाए, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, नहीं आना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, क्वेश्चन पूछ रहा है, बट अगर वो क्वेश्चन इलॉजिकल बार बार पूछे जा रहा है तो मेरे को ऐसे दिखने लगता है एग्जाम में क्या होएगा, वो पास कैसे होएगा। तो मैं उसको कभी अगर कुछ खराब बात बोल भी देता हूं, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मेरे को और इंप्रूव करना है। बट टॉकिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट इज माई जॉब, कि पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिए, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, सबके साथ बात करना होगा ना। सो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस क्वेश्चन सौरभ, आई वाज थिंकिंग ऑन दिस, हाउ मेनी कॉल्स आई शुड बी रिसीविंग इन अ डे, व्हाट शुड बी द स्पीड बाय विच आई कैन आंसर द कॉल, और उसके बाद स्टूडेंट्स का कंप्लेन कम आना चाहिए। मैं अपने लिए सोच रहा था। आप सोचोगे सर, सबको हर जगह मैं कोई भी चीज पढ़ता हूं, अपने लाइफ, अपने बिजनेस से को रिलेट करने लग जाता हूं कि ये तो मेरे बारे में ही बोल रहा है। बिलीव करिए, मैंने अभी बोला, लेकिन मैं पढ़ते वक्त ये सोच रहा था कि सिंस आई एम हैंडलिंग सो मेनी कॉल्स, अब उसमें किसी का कॉल छूट गया, नहीं बात हो पाई, ऐसा होता नहीं है, आई गिव कॉल बैक, बट फिर भी कोई का छूट गया, कोई गुस्सा होगा, तो स्टूडेंट को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग यार, कि वन मैन इज सॉल्विंग सो मेनी थिंग्स। लेकिन दुखी नहीं है, आई एम नॉट सैड कि समबडी सेइंग बैड, बिकॉज आई कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी, आई नो, बट फिर भी आपको ध्यान देना है कि आपकी जो गलती है वो आपको मेरे से ज्यादा पता है, आप उस पर वर्क करेंगे तो सक्सेस गारंटीड है, गारंटीड है सक्सेस। मैं भी अभी प्रैक्टिकली इसको सोच रहा था, हाँ देखा कि ये सही है, जो आंसर है ना, हाँ सही है, प्रैक्टिकली सोचना वो जरूरी है, मुझे लगता है। नहीं, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल नॉट बी कमिंग इन एग्जाम, एवरी 60 क्वेश्चंस इन एग्जाम विल बी टोटली डिफरेंट जो आपका आएगा। तो आपको तो वैसे ही सोचना होगा ना कि याद करके कोई फायदा नहीं है, हर क्वेश्चन में ए बी सी डी, जैसे आपने अभी बोला कि सर मेरे को सी और डी लग रहा है, इनका आंसर ए है वगैरह, ये तरह से सोचना जरूरी है आपका एग्जाम में। और हम लोग का एसीसी एग्जाम में यू कैन से ये सोचकर उसको लिखना जरूरी है, हर पर्सपेक्टिव को आंसर में कवर करना जरूरी है, इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना। चाहे कितना ही किताब, बुक, कापलान, बीपीपी, दिस दैट, कितना ही नोट्स बना ले, बट जब तक आदमी थ्योरी लिखने में प्रैक्टिकल होएगा नहीं, वो पास नहीं हो सकता है। उसको लग रहा है क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यू नीड टू को रिलेट विथ प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, योर लाइफ, वेयर यू आर वर्किंग, समवेयर आपको उसको एक सैंपल लेना पड़ेगा कि ये इससे को रिलेट कर सकते हैं, तब आपको फील ज्यादा आएगी, आप बेटर लिख पाएंगे। स्पीड चेकिंग करना है, कितना लिख पा रहे हैं, कितना टाइप कर पा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली आंसर कर रहे हैं कि नहीं एज पर रिक्वायरमेंट, सारी बातों पे ध्यान देना होगा, तब इन दैट केस प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान हमारे साथ दुखी हैं, मे भी हो सकता है कम नंबर आ जाए, बट फेल नहीं होंगे यार, फेल होने के लिए दम चाहिए यार। आई डोंट कंसिडर that we can fail in any exam, maybe CAT, FAT, GMAT, this, that, any exam. अगर आपका अप्रोच सही नहीं है तो फेल होंगे, अगर आपका अप्रोच सही है और आप पढ़ते हो, यू पुट एफर्ट्स, देन यू कांट फेल इन द एग्जाम, दैट्स गारंटी। आपको कोई फेल नहीं कर सकता दुनिया में। So before proceeding, anybody has anything to ask bhai? This is general discussion which was essential. Kunal ji, Ashish already gone, I think. No problem. बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अगर फेल हुए हैं तो गलती को ढूंढिए, उस पर वर्क करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फेल होना। ऐसे फेल हो गए 3 महीना बाद फिर एग्जाम है यार, उसमें से 1.5 महीना बीत गया, 1.5 महीना बाद पास होकर खुशी मना लेंगे, क्या टेंशन है, थोड़ी ना जीवन खत्म हो गया। इफ आई फेल्ड एन एग्जाम दैट मीन्स एंड ऑफ लाइफ, नो सर। छिछोरे एंड ऑल दैट, सो मेनी मूवीज यू मस्ट हैव सीन, द मूवी आर कम्युनिकेटिंग दैट कि कोई भी चीज काम कर रहे हैं उसमें फेल होना इज नॉट द एंड।
but you need to work that why you failed, why you couldn't succeed, that you need to pinpoint. नहीं तो फिर गड़बड़ होने से पूरा खत्म हो जाएंगे, सैटर हो जाएंगे ना, कि एक बार फेल हुए ठीक है, लेकिन दोबारा फेल होने से तो फिर खड़ा नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए उसको सोचना है, समझना है कहां गलती कर रहे हैं, उस पर वर्क करना है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 60-70 नंबर नहीं लाओगे, बिकॉज ऐसा कोई भी इस क्लास में नहीं है जो पढ़ता नहीं है. देयर इज नोबडी इन द क्लास हु डोंट स्टडी. थोड़ा सा सौरभ जी पहले नहीं करते थे, अभी थोड़ा पढ़ना चालू किए हैं सौरभ जी. इफ यू गिव वर्क हार्ड, वर्क विथ लॉजिक, विथ प्रैक्टिकलिटी, यू विल पास द एग्जाम. नोबडी कैन फेल यू. और एक बात, एग्जाम को डेफर करना is always a biggest failure in life than saying that ऑफिस में ये आ गया, वो हो गया वगैरह, घर में ये हो. आपको अपना काम उसी दिन करना है. मेरे हिसाब से उससे बिगर फेलियर कोई नहीं है. मैं अपना काम नहीं करूं, मैं आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करूं, मैं आज के दिन जो करना है नहीं करूं, दैट इज अ बिगेस्ट फेलियर इन लाइफ देन डूइंग समथिंग एंड नॉट एबल टू डू इट करेक्ट. उससे बड़ा फेलियर एग्जाम नहीं देना. So never think that in your dream also I will not give exam. Never. एग्जाम तो हम देंगे ही, इसका कोई ऑप्शन ही आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए. I will not give exam. So